Hello everyone, welcome to CMI Digital Classroom. So till now, in the previous class, we have learned how to estimate the number to the nearest 10, nearest 100 and nearest 1000. So we will do first one recapitulation what we have learned in previous classes. For example, if any number is given and it is asking to find out the nearest 10, so we will check the ones place number. Agar 437 is given and it is asking to find out the round of this number to the nearest 10, then we will check the ones place number. अगर ones place number 1 to 4 के बीच में है तो 0 कर देंगे, कोई और चेंजेस नहीं करेंगे. बट अगर 5 to 9 के बीच में है तो इसको 0 करने के साथ साथ हम लोग इस 10th प्लेस का नंबर में एक ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 440. उसी तरह से हम लोग ने ये भी देखा था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट राउंड ऑफ टू द नंबर टू द नियरेस्ट 1000. तो अगर एक नंबर दिया हुआ है 784, so how can we round off this number to the nearest 100? 10 के बाद हम लोग ने 100 देखा, तो अगर 100 में राउंड ऑफ करना है then we have to check the 10th place number. तो 10th place का नंबर हम लोग देख रहे हैं ये 5 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये दोनों डिजिट को तो 0 करना ही है, साथ में इसके साथ एक ऐड कर देना है, तो 800. तो ये हो गया राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100, and we have also learned how to round off any number to the nearest 1000. For example, 3892. So in that case we will see this 100 place number if we want to find out the rounding off to the number to the nearest 1000. तो इसमें 100 प्लेस का नंबर अगर 4 to 9 5 to 9 के बीच में है तो ये सारा डिजिट जो है 0 तो हो जाएगा, उसके बाद ये जो डिजिट है 1000 प्लेस का उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से 4000 हो जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी एस्टिमेट द सम. सो इफ इट इज आस्किंग फाइंड द एस्टिमेटेड सम, then how can we find out? So this we will learn in this video. So let us consider one example. Let us consider one sum it is given. Okay. So suppose the sum is 48 plus 63. So how can we find out? How can we find out the estimated sum of this number? So here we will write estimated sum and actual sum. Okay, so here you can write actual sum also. Actual sum. तो ये जो है this is the actual sum, and now if you want to find out the estimated sum, what do you have to do? So first you have to find the estimated number of both the digits. तो इसका भी एस्टिमेशन निकालना है, इसका भी एस्टिमेशन निकालना है. So if we want to find out the estimated to the nearest 10, so it will be as this is ones place we have 8, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें एक 8 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड सम 48 का हो जाएगा 50 प्लस 63 का, अगर वंस प्लेस में 3 है मतलब 1 to 4 के बीच लाई कर रहा है, तो दिस विल बी 0 एंड 6 will be as it is, तो 6 will be as it is. तो इसका एस्टिमेटेड सम कितना हो जाएगा 50 plus 60 is 110, right? So 110 will be the estimated sum, and actual sum अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 plus 3 is 11, 1 carry, so 6 plus 4 is 10, 11, 111. तो अगर एक्चुअल सम हो रहा है इसका, एक्चुअल सम हो रहा है 111 rupees, but estimated sum हो रहा है 110 rupees. So this is how you can find out the estimated sum of any number whatever it is given. This is the examples which I have did. So actual sum or estimated sum, I hope you understood very simply. First you have to estimate the number, given number, and then you have to find the sum of the estimated value. Okay. So here also if it is not mentioning and if it is 3-digit number given and if it is not mentioning anything, then you have to estimate the sum of both terms, to the nearest 10 also, to the nearest 100 also, and if it is of up to 1000 places here, so you have to find for the sum of the rounding off to the nearest 1000 up to nearest thousands also. Okay, so for example we can take 300
numbers are there. 324 plus 409. So here we want to find the sum of these two numbers. Okay. So first we will find the rounding of this number to the nearest 10. Okay. So 325. If you find the rounding of this number, rounded off to the nearest 10, rounded to the nearest 10. So here you can find the estimated sum also, and you can find the actual sum also. आप एक्चुअल सम भी निकाल सकते हो, एस्टिमेटेड सम भी निकाल सकते हो। तो इसको अगर राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट 10, तो वंस प्लेस में 4 है तो सिर्फ 0 हो जाएगा, तो 320 हो जाएगा। ठीक है। और इसको उसी तरह से 409 का निकालने जाओगे, राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, rounded to the nearest 10, तो इसका हो जाएगा 9 है, so this is 9, so 9 will be 0 and 1 because it is lying between 5 to 9, so this 1 will be added here, so 0 will be 1, so 410, so 410 will be the rounded to the nearest 10. Okay. And now if you find the sum, then it will be 0, 3, 730. So this is the sum of the rounded to the nearest 10. Okay. So ये जो है nearest 10 का sum है। आप इसी को आप round off to the nearest 100 में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 110 के जगह पे अभी हम लोग को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए 100 में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो यू हैव टू चेक द टेंथ प्लेस नंबर। ओके, तो बिकॉज़ टेंथ प्लेस नंबर इज 2 व्हिच इज लाइक बिटवीन 1 to 4, तो ये दोनों डिजिट को हम लोग को 0 कर देना है, कोई और चेंजेस नहीं होगा, तो दिस विल बी 300। और इसका हम लोग को ये डिजिट चेक करना है, 0 है तो कोई भी चेंजेस नहीं, दिस 2 डिजिट विल बी 0, सो दिस विल बी 400। तो द सम ऑफ द राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 विल बी 4 plus 3 is 7, so 700, and actual sum will be 324। इससे पहले वाला भी एक्चुअली हम इस तरह से निकाल सकते थे। ठीक है, एक्चुअल सम विल बी 9 plus 4 is 13, 3 1 carry 3, 4 plus 3 is 7, so actual sum if you see it is coming 733, but the round estimated sum is coming 700, and this is the estimated sum of the nearest 100। so यहाँ पे अगर 100 की जगह पे thousands प्लेस तक नंबर रहे तो आपको tens का भी निकालना है, 100 का भी निकालना है, thousands का भी निकालना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में देना है कि आपको अगर इस तरह से कोई भी सम दिया हुआ है और 2 डिजिट का दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ टेंस प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है सम का। अगर 3 डिजिट का दिया हुआ है तो टेंस का भी करना है, हंड्रेड्स का भी करना है, इस तरह से एस्टिमेटेड सम भी करना है, एक्चुअल सम भी करना है। कभी-कभी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो 33 इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम, राइट। तो इसी तरह से कभी-कभी डिफरेंस पूछा जाता है, कभी-कभी सम पूछा जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको एस्टिमेट करना सीखना है। अगर आपको एस्टिमेट करना आ गया नियरेस्ट 10, 100 और 1000 में, तो आप बहुत इजीली जो भी इस तरह का क्वेश्चंस है, एस्टिमेटिंग सम, एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट, एस्टिमेटिंग डिफरेंस,
सारा एक ही चीज है जो कि बेस्ड है हमारा एस्टिमेशन ऑफ नंबर पे। अगर आप एस्टिमेशन ऑफ नंबर नहीं समझ पाए हो, प्रीवियस चैप्टर्स नहीं समझ पाए हो, तो आगे का कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आप सही से प्रीवियस चैप्टर्स का जो भी वीडियोस है वो देखें। अगर कुछ डाउट्स है एस्टिमेशन में तो बेझिझक आप पूछें, then only you can able to understand about the rest of all exercise of other exercise, right? Let us take an example of exercise 7.2. Question number 1. Estimate each of the following sum. पहले तो ये बोल रहा है estimate करना है इसको and to the nearest 10. ये दिया हुआ है कि सिर्फ आपको nearest 10 में ही करना है, तो nothing to worry about it. And also find the actual sum. तो actual sum भी निकालना है, तो पहले actual sum ही निकाल लेते हैं। Arrange किया हुआ है, तो 5 plus 2 is 7, 5 plus 1 is 6, 3, 8 plus 5 is 8, 9, 10, 13, right? 3, 1 carry 5. So 5, 3, 3, 6, 7 is the actual sum. Okay. So now to find out the estimated sum to the nearest 10, what we have to check is ones place का number check करना है, क्योंकि nearest 10 में राउंड ऑफ करना है। तो ones place का नंबर अगर 2 है, अगर 2 है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ 2 को हम लोग 0 कर देंगे। तो 2 के जगह 0 लिखेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे 1, 3, 5, 4। और यहाँ पे भी इसको भी एस्टिमेट करने के लिए टेंस में करने के लिए वंस प्लेस का डिजिट लिखेंगे। 5 है तो 5 तो 0 होना ही है एनीहाउ, और अगर 5 है इसीलिए इसमें एक ऐड करना है, तो 5 जो है हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद एज इट इज हो जाएगा 0, 8। तो इसको आप जो है इसका हमारा सम निकालना है, तो हो गया 0, 7, 3, 8 plus 5 is 13, 3, 5. So 5, 3, 3, 7, 0. तो 53,367 का जो राउंडिंग ऑफ होगा टू द नियरेस्ट 10, तो वो होगा 53,370। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द राउंडिंग सम ऑफ एनी नंबर टू द नियरेस्ट 10। तो इसमें आप लिख सकते हो ये जो है ये एस्टिमेटेड सम। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एस्टिमेटेड सम, और एस्टिमेट ही बोला गया, एस्टिमेट इज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दिस इज द एस्टिमेटेड सम व्हिच वी गॉट दिस मच। ओके, नाउ द सेम वे दिस वन आल्सो वी विल डू। सो 9 plus 5 is 14, 4, 1 carry 6, then 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9, 8 plus 5 is 13, 1 carry 3. So 3, 3, 9, 7, 6, 4 is the actual sum. Okay, actual sum ये है। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ हम लोग को वंस प्लेस का नंबर देखना है। 9 है तो ये तो 0 होगा, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर राउंडिंग का बात करें, हम नीचे करते हैं, उधर से सूत्र नहीं है, तो 9 की जगह पे हमारा 0 लिखेंगे, और ये जो है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, बाकी ऐसे नहीं जाएगा 4, 2, 5, 2। उसी तरह से ये जो नंबर है इसमें भी वंस प्लेस में हम लोग का 5 है तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 to 9 के बीच में है तो इसमें एक हो जाएगा हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करने के लिए 5 जो है 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया, देन 3, देन 7 एंड देन 8। अब इसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो 0, 0, 0, 6, 7, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 8, 5, 13, 1, 3. So 3, 3, 9, 7, 7, 0. So this is how this is the actual sum, this will be the estimated sum. इसी तरह से बाकी सब जो भी है इस एक्सरसाइज में आप एक्चुअल सम भी निकाल सकते हो और एस्टिमेट करके भी निकाल सकते हो। Either it is asking to the nearest 10 or it is asking to the nearest 100 or it may ask for to the nearest 1000 also. तो कोई भी वैल्यू पे बोले, अगर क्योंकि नियरेस्ट 10 पे बोला गया था तो हम लोग वंस प्लेस देख के टेंस प्लेस सेंस कर रहे थे। अगर 100 प्लेस में बोले तो टेंस प्लेस देख के 100 प्लेस सेंस करेंगे, अगर थाउजेंड्स प्लेस में बोले तो 100 प्लेस देख के 1000 प्लेस को सेंस करेंगे। ठीक है, तो यही बेसिक चीज है ऑल अबाउट द एस्टिमेटिंग नंबर। बाकी सम तो आपको आता ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल यू आर नोइंग, राइट। If we talk
about question number 2 of exercise 7.2. That is also the same, but here just instead of 10 it is 100. तो आपको 10 की जगह पे 100s का एस्टिमेशन करना है और एक्चुअल सम भी निकालना है। तो चलो पहले एक्चुअली सम निकालते हैं। 6 plus 1 is 7, 5 plus 6 is 11, 1 carry 1, 6, 5 plus 3 is 8. So actual sum is this. Actual sum is this 86117. So now let us round off to the nearest 100. तो nearest 100 में राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग को देखना है जो टेंस प्लेस का नंबर है वो, ठीक है। तो टेंस प्लेस में अगर 5 है तो क्या होगा, ये दोनों 0 होगा लेकिन इसमें एक 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 0 के जगह पे हम लोग का 1 हो जाएगा और 6 और 5, so 6 and 5. So this will be the round of this number. इसी तरह 6 का राउंड ऑफ निकालने के लिए हम लोग सेम टेंस प्लेस का नंबर 6 है तो 5 से 5 या 9 के बीच में है, तो यहाँ भी ये दोनों डिजिट 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये दोनों 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। अब इसका जो सम होगा दैट विल बी द एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 1 2 हो गया, 6 हो गया, 5 3 8 हो गया। So this is how the estimated sum of this number to the nearest 100 is this much. Okay. उसी तरह से आप इसका भी हम लोग करेंगे। सम तो आप लोग इजीली निकाल लोगे, ठीक है। So 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 3 8, 8 plus 6 is 14 and 3 plus 1 is 4. So 4 4 8 3 7 6 is the actual sum. Now if you want to find out the rounded sum or estimated sum, then what you have to do is, so in case of 100 we will check the tens place number. So tens place number is 2. So here these two digit will be 0 and nothing any changes क्योंकि 1 to 4 के बीच में है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 38700 क्योंकि ये 2 है तो 2 में दोनों 0 हो जाए, कोई और चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे 5 है तो ये दोनों 0 होने के साथ साथ हमारा यहाँ पे 1 ऐड होगा तो 3 जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो होगा 61400। तो इसके बाद हम लोग इसका सम निकालेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 4 4 and 7 1 8 6 8 12 sorry 6 8 14 14 3 1 4. So 4 4 8 4 0 0 4 4 8 4 0 0 will be the estimated sum of these two numbers. तो इस तरह से आपको अगर 100 की जगह पे thousands का भी बोला जाए तो आप कर सकते हो with the same value, ठीक है। और इसी तरह से आगे का भी हम लोग कर सकते हैं because we have in our next class also about the further estimations, so that we will learn about in that particular classes. Till now whatever we have is that much only. The most important thing, don't forget to understand about the basic how to estimate the number to the nearest 10, 100, thousands. This is the only basic. If you understood that, then you can estimate the sum also very easily. So now I hope you will able to do this exercise by yourself. अभी उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आप अपने से बना लोगे। So your homework is exercise 7.2. Okay. So this is your homework. I hope you will do all the questions. Okay. There is space in your book, but that is for the actual sum only. So it will be better you do in your copy. Okay. And in case of any doubts, we will discuss in our live classes during our live classes also, and you can ask in our group discussions also. Okay. And thank you. Have a good time. Take care. Bye bye. Happy life.